Bismillah Rahman Rahim. Welcome to all the students of Global Professional Practice and Professional Practice class. We were, until the last lecture, the previous lecture, we were talking about how the ambiguities exist in the writings or in the speech of most of the people. And we have to find a way how to remove those ambiguities and start talking specifically without any vague or unclear sentences or words. And in the previous lecture slides, I'll show you the slides in a second. We discussed about some terminology, like we talked about what is meant by miscommunication. Also talked about ambiguities and vagueness. Now, in today's discussion, this is once again a two-part video lecture that you will be seeing on your Google Classroom at the lecture time. We're going to talk about a little bit more about ambiguities and inconsistencies, and then we're going to talk about some ways and means to how to avoid these ambiguities. Now, starting with the discussion on miscommunication, we were able to understand that a miscommunication is either it's a failure to convey the message properly between the sender and the receiver, or it might be a failure to convey the actual meaning of the message by the sender to the receiver. And sometimes it happens that the receiver or the recipient of the message, they are not able to understand the actual meaning of the message. Now, what could be the reason? We talked about a lot of reasons, like there could be lack of context in the discussion. Like whatever sentence somebody is speaking now, it lacks the relevance or context from the previous sentences that they have said. Or when you are writing something, after writing so many lines, somebody immediately writes a line which does not have a clear meaning because it's not connected to the context of the previous lines. Then there could be reasons of assumptions when somebody is saying something and the listeners, they don't actually listen to the words. They make assumptions about the person who is talking and whatever he is talking. They make some certain assumptions, and those assumptions have their own meaning. The listener has their own meaning about these assumptions, whereas the person who is speaking, they have some other meaning. So there is a discontinuity or a gap of communication. Then ambiguities and vaguenesses, we talked about them. Ambiguity is something which in which some words are spoken or written, but they are unable to convey the correct or the clear meaning to the listener or to the person who is reading them. There are certain English words in English language which might cause ambiguities to their listeners or sometimes the person who reads them, and that person belongs to this region, Pakistan. So there might be some ambiguities. We talked about a few examples of those ambiguities, like there is a word which gives a sound effect of hair. Now, actually, there are 3 or 4 different words which can be spoken with the same sound effect and which can confuse the listener, our local listener. Here, here, here. I mean, there are differences in spelling when you write down, but the person who is speaking them, they might not be making a different gesture or a different vocal output to produce these sounds, these words. There were other words like shoot. There were words like right and left, which have multiple meaning. There was a word shot, which has different meaning in English at different instances.
So the local people might be confused when they listen to these words, what actually is being told or what actually is being attempted to convey to them. Then we talked about inconsistency. Inconsistency happens when there is a sentence which does not have the words at their proper places. The person who wrote those sentences, they're not putting the words at proper places. Maybe they are mixing up nouns with verbs or adjectives with verbs. So it might happen that the person who is reading them, they get the false or the opposite meaning of what, like we talked about an example. I would like to thank my parents, Ma'am Rose, and God. So it might be that the person who is listening to them, they will say that the person's parents' names are Ma'am Rose and God. But actually, the actual meaning that wanted to be conveyed but could not be conveyed was different. The person who is saying this sentence is trying to say that he would like to thank his parents. He will also like to thank Ma'am Rose, and he will also like to thank God. But actually, the way the sentence is being written or the way the sentence is being read in front of you, it makes a lot of ambiguities because of inconsistencies. So the meaning might not be the one which is actually intended to be conveyed. Then we talked about what is the major difference between a layman and a professional. The layman and the professional is a person who actually belongs to a particular profession, like a software engineer or a computer scholar or an IT expert or a doctor of medicine or a lawyer, provided that they belong to that particular profession. But who is a layman? Anybody can be a layman, provided that they do not belong to a particular profession and they start talking about that profession. A person without professional or specialized knowledge in a particular profession will be a layman. Like, I can admit that I am a layman in the profession of law because I don't know anything about the profession of law. I'm a layman for the profession of medicine because I don't know very much about medicine, about diagnosis of diseases and how to treat them. That is why I'm a layman. As far as the profession of computer science is concerned, I'm not a layman. I can claim that I'm a professional of computer science. Likewise, a software engineer is a layman to the field of doctors, and vice versa. The doctors are laymen to the field of software engineering. Now, a word needs to be understood, and the word is vague. Vague means some word or statement which is unclear, which does not make a sense. It might be an ambiguous statement, or it might be an inconsistent statement. And to the listener or the person who is reading that sentence, does not make out the clear meaning of that sentence. There is lack of clarity in such sentences or statements. That's why they are known as vague. Now, how can we remove the vagueness? How can we remove ambiguities or inconsistencies from our speech and from our writing, whatever we are writing? Most of you need to understand that whenever you are writing the answer of a question in a paper, you have to be very much clear. You don't have to be ambiguous. If you are ambiguous in your answer writing, then you are not clear and you lose the marks. That's why a lot of people were getting less marks for something that they thought is the correct answer, but to us, to the professionals, it might not be the correct answer. Now let's move on. We did talk about some one or two examples of miscommunication, and I'm not going to repeat them because they were already done in the previous lectures videos. Now we are going to talk about some
results or conclusions of miscommunication. Whenever you perform miscommunication, that is, you don't perform the correct communication and the meaning of the message is not properly conveyed, then what happens? There are a lot of things that can happen. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Damaged relationships between the sender and the recipients of the communication, and so to say, the miscommunication. लोगों के दरमियान गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स में कोई दरार आ सकती है, कोई टूट फूट आ सकती है, डैमेज हो सकती हैं relationships. It can be the relationship between a boss and his employee. And it can be the relationship between peers, people who are working on equal designations in a company or an organization. It can damage the relationships between the customer and the service provider. We are the service provider, and if we are not able to get the correct communication from our customer or the client, then damaged relationship will occur somehow near or in far future. Loss of productivity, because miscommunication does not carry actual meaning, then there might be loss of productivity in work. Your work might not be productive. इतना आरामद किस्म की कोई काम आप नहीं कर पाएंगे जब आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी. ये भी हो सकता है कि लोगों के काम में इनएफिशिएंसी आ जाए, एफिशिएंसी जाती रहे और हर काम को दोबारा करने की जरूरत पड़ जाए क्योंकि मिसकम्युनिकेशन ने बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो मिसिंग कर दिए. तो हो सकता है कि फिर जो काम करना था वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से बार बार करना पड़े ताकि हर मर्तबा वो सही हो जाए और हर मर्तबा ही उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती जाए. कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के दरमियान, डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे, झगड़े. अक्सर जो लोगों के दरमियान झगड़े आम जिंदगी में भी आते हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, गलत फहमियों की वजह से. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं, लाइक वो जो हमने बात की थी कि कस्टमर के साथ कोई अच्छी एक रिलेशनशिप नहीं कायम होगी, तो फिर हो सकता है कि आप वो बिजनेस रिफ्यूज कर दे, आपसे वो सर्विसेज ही ना ले, वो किसी और से सर्विसेज ले, देन ऑफ कोर्स यू आर फिर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ओवर देयर. देन स्केड्यूल स्लिपेज, ये नई चीजें डिले होती जाएंगी, स्केड्यूल्स जो है वो आगे एक्सटेंड या डिले होते जाएंगे, डेडलाइंस मिस होती जाएंगी. स्कोप क्रीप आ जाएगी. स्कोप क्रीप का मतलब है कि जो स्कोप पहले डिफाइन की गई थी प्रोजेक्ट के लिए, अब वो स्कोप उससे बदल गई है, चेंज हो गई है, या तो वो बढ़ गई है या कम हो गई है और नतीजा ये होगा कि आप बहुत सारी मेहनत जो कर रहे होंगे उसका फायदा ही कोई नहीं हो रहा होगा. वेस्टेड रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से मिस हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं. सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स ही है जिसके ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन जो टाइम है और जो मनी है वो भी एज अ रिसोर्स इस किस्म की मिसकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, जाया हो जाती है. और फिर ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स कहीं से आई होती हैं वो ही क्लियर नहीं होती, तो उनकी वजह से जो वर्किंग हो रही होती है वो ही क्लियर नहीं होती, वही जो डिमांड्स हैं वो मीट नहीं हो पाती. अब इस किस्म के कई नुकसान हो सकते हैं जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, और सो टू से वो मिसकम्युनिकेशन एम्बिग्विटीज और इनकंसिस्टेंसीज की वजह से हो रही हैं. तो उनकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम सबको डिस्कस करें. अब एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस हैं, वन लाइनर्स भी हैं और टू लाइनर्स भी हैं और थोड़े से स्टोरी स्टाइल में भी हैं. तो पहले मैं शुरू करता हूँ वन लाइनर्स के साथ, जिसमें कोई ना कोई एक सेंटेंस कोई बोल रहा है या लिख रहा है और सुनने वालों को या पढ़ने वालों को उसमें एम्बिग्विटीज नजर आती हैं, क्योंकि उनमें एम्बिग्विटीज हैं और उन्हें वो मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता. अगेन वंस अगेन, अगर तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो अहले जुबान, लाइक जो फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं इन देयर ओन कंट्री, लाइक अमेरिकन हैं या ब्रिटिश हैं, शायद उनके लिए ये एम्बिग्विटीज ना हो. लेकिन हम जैसे लोगों को जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है,
ना उनकी फर्स्ट लैंग्वेज अमेरिकन इंग्लिश है ना ब्रिटिश इंग्लिश है, बल्कि कोई लोकल लैंग्वेज है या उर्दू है, उनको इनका असल मीनिंग समझने में काफी सारा वक्त लग सकता है, काफी सारी प्रैक्टिस या रिहर्सल की जरूरत हो सकती है। लेकिन एकदम से जब ये सेंटेंसेस उनके सामने फॉर द फर्स्ट टाइम आते हैं, तो दे गेट कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटीज। लाइक जो फर्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, कोई शख्स कह रहा है, आई कैन अश्योर यू दैट नो पर्सन वुड बी बेटर फॉर द जॉब। आई कैन अश्योर यू दैट नो पर्सन वुड बी बेटर फॉर द जॉब। अब मैं अगर लेमैन की तरह इसका तर्जुमा करूं, तो मैं ये समझ पाऊंगा कि जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी शख्स इस जॉब के लिए बेहतर है ही नहीं, सूटेबल है ही नहीं। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट इंस्टांस जब आप इस जुमले को सुनते हैं और फौरन आपने इस पे को रिस्पॉन्ड करना है, तो आप इसका क्लियर मीनिंग नहीं गेट कर पाएंगे। आई कैन अश्योर यू दैट नो पर्सन वुड बी बेटर फॉर द जॉब। इसका मतलब है कि मे बी किसी ने इंटरव्यूज वगैरह किए और इतने सारे इंटरव्यूज करने के बाद वो आके ये ऐलान कर रहा है कि जी, मुझे तो कोई भी सूटेबल बंदा मिला ही नहीं इस जॉब के लिए। लेकिन आप जब इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसका एक्चुअल मीनिंग जो इसमें छुपा हुआ है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। लाइक द पर्सन हु इज सेइंग दिस सेंटेंस, आई कैन अश्योर यू दैट नो पर्सन वुड बी बेटर फॉर द जॉब, शायद ये कहना चाह रहा है कि जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने जो इंटरव्यूज किए हैं उनमें एक सूटेबल पर्सन मिल गया है, और वो इतना सूटेबल है उसके मुकाबले में जो बाकी लोग थे वो किसी काबिल नहीं है। So I have found the best or the better person for the job, and nobody else out of these people would be suitable as much as this person is suitable. लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन मिल रहा है सेंटेंस का, असल में वो ही कैरी करता है। बहुत सारा वक्त लगेगा असल मतलब तक पहुंचने में, बार बार इस जुमले को पढ़ने में कि भाई बात तो सही लिखी होगी, हम ही नहीं सही समझ रहे, तो बार बार पढ़ने से शायद उसका असल मतलब क्लियर हो, बट दैट माइट बी टू लेट। एक और एग्जांपल है, आई वंस शॉट एन एलिफेंट इन माय सैंडल्स। इट्स क्वाइट अ फनी सेंटेंस एक्चुअली। आई वंस शॉट एन एलिफेंट इन माय सैंडल्स। अब शॉट का जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वो आई प्रिज्यूम कि ये शॉट का मतलब है जी मार देना, गोली मार देना, जिस तरह जानवरों का शिकार ये करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एलिफेंट के साथ ये जिक्र हो रहा है शॉट, तो इट वुड मीन कि जी उसने एलिफेंट को मारा। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज आई वंस शॉट एन एलिफेंट इन माई सैंडल्स। ये बिल्कुल वैसे ही कोई एक तासुर सा मिल रहा है जैसे आई वंस फाउंड अ कॉकरोच इन माई सैंडल्स। मेरे सैंडल्स में कोई कॉकरोच या कोई कीड़ा मकोड़े थे, बग्स थे। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़हन में आता है कि भाई एलिफेंट और वो भी मेरे सैंडल्स के अंदर, अनलेस ऑफ कोर्स कोई ऐसे एलिफेंट्स हों जिनका साइज ही इतना हो कि जी वो सैंडल्स के अंदर बैठ जाएं, जैसे कॉकरोच बैठ गया, लेकिन ऐसा तासुर नहीं। लेकिन ये एम्बिग्विटी जरूर पैदा कर गया ये सेंटेंस। थोड़ा सा गौर करने से शायद आप इसके रियल मीनिंग तक पहुंचेंगे, लेकिन उस मीनिंग तक पहुंचते पहुंचते आप या कई और लोग एम्बिग्विटीज की वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, and it will take a lot of time to come out of that confusion and get the real meaning of this sentence. I once shot an elephant in my sandals का असल मतलब ये है, वो जो कुछ शिकारी साहब जिन्होंने एक एलिफेंट को शूट किया, उन्होंने कई और शिकार किए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा मौका आया कि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो प्रॉपर शूज पहनते, तो वो अपने खेमे में या जहां कहीं भी वो रुके हुए थे वहां से वो जल्दी में फिर सैंडल्स पहन के ही आ गए। सैंडल्स माइट बी जो आ, हमारे यहाँ हवाई चप्पल या इस तरह की कोई चीज कहलाती है, जबकि शिकार के लिए तो सैंडल्स नहीं होते होंगे, वहां तो प्रॉपर शूज होते होंगे। लेकिन ये जुमला जो है ये गलत तासुर पैदा कर गया है, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और एटलीस्ट अ मिनट। इट caused a lot of confusions because of some ambiguities or probably because of some inconsistencies.
अब इस जुमले को सही करके अगर बोला जाता, लाइक अगर कहा जाता, आई वंस शॉट एन एलिफेंट एंड आई वाज वेयरिंग माय सैंडल्स, काफी हद तक जुमला क्लियर हो गया। कम से कम इस हालत में जो जुमला है उससे तो बेहतर है कि जनाब एक दफा मैंने हाथी का शिकार किया और आप देखें उस वक्त मैंने सैंडल पहने हुए थे, शूज भी नहीं पहने हुए थे। अब इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस हैं, जल्दी से उनको भी देखते चलते हैं। ऑफन यू मे सी अ साइन लाइक द फॉलोइंग एट अ मॉल, किसी शॉपिंग मॉल में आप इस तरह का एक कोई साइन लगा हुआ या कोई बैनर या कोई प्रिंट आउट सा लगा हुआ शीशे पे आप देखते हैं, एंटायर स्टोर 25% ऑफ, एंटायर स्टोर 25% ऑफ। अब देखिए हमारे देसी लोग जो समझते हैं कि ऑफ का मतलब है बंद, लेकिन एंटायर स्टोर 25% ऑफ का क्या मतलब होगा? शायद वो ये समझ पा रहे हो कि जनाब पूरा स्टोर जो है वो 25% बंद है। थोड़ा सा वक्त लगेगा सेंस बनाने का इस सेंटेंस को। आखिर में ये बात समझ में आएगी कि जी जो स्टोर है जिसके बाहर ये बैनर लगा हुआ है, वहां पे जो सामान बिक रहा है वो तमाम का तमाम डिस्काउंट आपको मिल जाएगी 25%, यानी जो असल कीमत है 25% ऑफ कर दी गई है। यू कैन पे द रिमेनिंग 75% ऑफ द प्राइस ऑफ दैट आइटम जो कि उस शॉप में बिक रहा है, एवरी आइटम। ये एक जुमला है जिसमें कि if a man were to shoot his grandmother at a range of 500 yards, I could call him, I should call him a good shot, but not necessarily a good man. ये जुमला जो तासर छोड़ता है एम्बिग्विटी का, जो पहले ही चंद अल्फाज से एम्बिग्विटी शुरू हो जाती है। जब वो कहता है इफ अ मैन वर टू शूट हिज ग्रैंड मदर, हमारे लोग देसी लोग यहीं पे ही रुक जाएंगे, ये क्या कर दिया। इफ अ मैन वर टू शूट हिज ग्रैंड मदर, यानी एक आदमी ने अपनी ग्रैंड मदर को शूट करना है, फर्ज करें, और वो भी एट अ रेंज ऑफ 500 यार्ड्स। 500 यार्ड्स काफी फासला होता है। तो आप खुद सोचें, अगर कोई शख्स अपनी ग्रैंड मदर को इतने फासले पे शूट कर रहा है, जुमला तो ये सेंस बना रहा है जनाब निशाना तो बड़ा जबरदस्त है इसका, 500 गज से उसने ग्रैंड मदर को शूट कर दिया है। लेकिन हाँ निशाना तो है, लेकिन बात ये कि ये काम क्या किया है इसने, ये कोई अच्छा आदमी कोई इस तरह के काम करता है, ये काम करने वाला अच्छा आदमी नहीं हो सकता। If a man were to shoot his grandmother at a range of 500 yards, I should call him a good shot. यानी बहुत अच्छा निशानची है, निशानेबाज है, बट नॉट नेसेसरली अ गुड मैन। बिकॉज आप देखें उसने किया क्या है जी, किसी जानवर को या किसी परिंदे को नहीं मारा, उसने अपनी ग्रैंड मदर को शूट किया। अब ये एम्बिग्विटी फौरी तौर पे काफी देर तक हमारे जहन में रहेगी अगर हम इस एम्बिग्विटी को किसी तरह से रिमूव नहीं करते, या हमारे लिए इस एम्बिग्विटी को रिमूव नहीं किया जाता। लाइक अगर कोई इस तरह की बात होती कि शूट का असल मतलब, वैसे तो शूट के मैंने आपको बताया कि 3-4 मुख्तलिफ मतलब बनते हैं, जिनमें से एक गोली मारना भी है और एक कैमरा यूज करके कैमरे की मदद से स्नैप्स लेना, ये भी शूट कहलाता है। जिस तरह फोटोशूट का लफ्ज आप सुनते हैं, फिल्म शूटिंग। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात को समझें कि इफ अ मैन वर टू शूट हिज ग्रैंड मदर एट अ रेंज ऑफ 500 यार्ड्स, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि एक शख्स है वो उसकी ग्रैंड मदर काफी फासले पे बैठी है 500 यार्ड्स, और ये उसकी कैमरे की मदद से तस्वीर बनाता है, तो आई वुड कॉल हिम अ गुड शॉट, क्योंकि बहुत सारे आम आदमी कैमरे से इतने फासले पे अच्छी तरह से तस्वीर कशी नहीं कर सकते। तो अब जो भी ये तस्वीर कशी कर रहा है डेफिनेटली बहुत अच्छा शॉट है, यानी कैमरामैन अच्छा है, बट नॉट नेसेसरली गुड मैन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वैसे भी वो शरीफ आदमी हो, कोई कैमरे से वो अच्छा काम कर रहा है, बट ये जरूरी नहीं कि अच्छा आदमी हो, शरीफ आदमी हो। अब आपको सोचना है कि इस सेंटेंस को किस तरह से करेक्ट किया जाए
ताकि असल मीनिंग कन्वे हो और एम्बिग्विटी, एक सेकंड के लिए भी एम्बिग्विटी नजर ना आए। आई गिव इट एज अ चैलेंज टू यू कि इस सेंटेंस को आप किस तरह से करेक्ट करें। ये एक बड़ी दिलचस्प सा एक लतीफा भी बन जाता है। दिस सेंटेंस वन लाइनर, फाइन फॉर पार्किंग हियर, बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है और दोनों सूरतों में जो इस एम्बिग्विटी का शिकार हो उसका कोई ना कोई नुकसान जरूर हो। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि जी किसी ने वो पढ़ लिया जी फाइन फॉर पार्किंग हियर, अब वो यही समझा, एम्बिग्विटी उसको ये हुई, फाइन का मतलब है वेरी गुड, दुरुस्त, सही, लेकिन फाइन इसी स्पेलिंग के साथ इस लफ्ज का एक मीनिंग और भी है और वो मीनिंग है जुर्माना। फाइन कर दिया जी, जिस तरह आप कहते हैं ना फीस में लेट कर दिया तो फाइन हो गया, तो फाइन का मतलब दुरुस्त भी है और फाइन का मतलब जुर्माना भी है। अब एम्बिग्विटी हम जैसे लोगों के लिए ये पैदा कर दी गई है कि पार्किंग हेयर का लफ्ज उसके साथ ऐड कर दिए हैं दो। फाइन फॉर पार्किंग हेयर का मतलब तो ये भी हो सकता है जनाब ये बड़ी जबरदस्त जगह है पार्किंग के लिए, आप भी इधर ही पार्किंग करें। फाइन फॉर पार्किंग हेयर, यानी इधर पार्किंग करने का कोई मसला नहीं है, गाड़ी पार्क करें, बाइक पार्क करें, वट। लेकिन Who knows कि जिसने ये नोटिस वहां लिख के लगाया हुआ है उसका असल मीनिंग क्या था, वो फाइन को अच्छे के तौर पे ले रहा था या फाइन को जुर्माने के तौर पे ले रहा था। वेरी ट्रिकी। ये भी हो सकता है कि द पर्सन जिस तरह आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है वो बड़े मजे से फाइन को पार्किंग का मतलब ले रहा था कि जी बेहतरीन जगह पार्किंग के लिए, पार्किंग करके चला गया, बाद में उसे पता चला जी किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने या किसी और ने, किसी मुलाजिम ने वहां से उसका जनाब एक जुर्माना उसकी कार पे लिख के चेक लगा दिया कि जी अब आपको जुर्माना होगा, क्योंकि ये पार्किंग की जगह ही नहीं थी। यहाँ पे जुर्माने होते हैं उन लोगों को जो कि पार्किंग करते हैं, लेकिन ये किसी ने भी वाजे नहीं किया कि फाइन का मतलब जुर्माना है या अच्छा है। यानी जो बैनर या नोटिस या वो जो बोर्ड वहां पे लगा हुआ है वो गलत तरीके से लिखा गया, या कम से कम हम उसे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात तो है। अब इसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं ताकि एक्चुअल मीनिंग कन्वे हो। लाइक आप कह सकते हैं कि जी नो पार्किंग, यू विल बी फाइंड। हाँ ये ज्यादा बेहतर है, नो पार्किंग, ये तो सबको समझ आ जाएगा, जनाब इधर पार्किंग ना करें वरना जुर्माना हो जाएगा। या आप कह दें जी नो पार्किंग और नीचे लिख दें फाइन 100 और 200 रुपीज, जितना भी कोई एक जुर्माना है, तो वो क्लियर मैसेज बन जाएगा। इस वक्त तो इसमें एम्बिग्विटी है। एक और सेंटेंस है, दिस इज द वर्स्ट डिजास्टर इन कंट्री सिंस आई वाज इलेक्टेड। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी क्या है? दिस इज द वर्स्ट डिजास्टर इन कंट्री सिंस आई वाज इलेक्टेड। कोई शख्स जो कि इलेक्ट हुआ किसी भी मुल्क में, तो जब वो इलेक्ट हुआ तो उस वक्त से अब तक ये वर्स्ट डिजास्टर, यानी इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि जिस शख्स की बात हो रही है इलेक्टेड की, उसका इलेक्ट होना भी एक डिजास्टर था और उस वक्त के गुजरने के बाद अब फिर एक डिजास्टर आ गया। दिस इज द वर्स्ट डिजास्टर इन कंट्री सिंस आई वाज इलेक्टेड। दिस इम्बैग्विटी को आपने किसी तरह रिमूव करना है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, 4 वर्ड्स हैं सिर्फ इसमें। स्टूडेंट्स हेट अनोइंग प्रोफेसर्स। फिर पढ़ें, स्टूडेंट्स हेट अनोइंग प्रोफेसर्स। ये तो बहुत ही एक एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन नहीं हो गया? ये जो स्टूडेंट्स के साथ हेट का वर्ड है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या इसका ये मतलब है कि जी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है अनोइंग प्रोफेसर्स, यानी वो वाले प्रोफेसर्स जो अनॉय करते हैं, उनको तंग करते हैं जी, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स हेट अनोइंग प्रोफेसर्स, या इसका मतलब कुछ और है? तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है कि वो प्रोफेसर्स को तंग करें।
स्टूडेंट्स हेट annoying the professors. अगर ये दी का आर्टिकल इसमें ऐड कर दिया जाए तो बात एम्बिग्विटी से क्लैरिटी की तरफ चली जाएगी और असल मीनिंग जो मैं भी और आप भी चाह रहे हैं सामने आए। स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है, स्टूडेंट्स हेट annoying the professors, प्रोफेसर्स को annoy करना, क्लास में उन्हें तंग करना, बात ना मानना एंड सो ऑन। अब इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल्स हैं यूज्ड कार्स की। व्हाई गो एल्सवेयर टू बी चीटेड, कम हियर फर्स्ट। ये किसी शोरूम, कारों के शोरूम के बाहर लिख के लगाया हुआ है कि जी व्हाई गो एल्सवेयर टू बी चीटेड, जनाब आप कहीं और क्यों जा रहे हैं धोखा खाने के लिए। कम हियर फर्स्ट, धोखा ही खाना तो इधर आए जनाब, हमारे पास आए। क्या इसका ये मतलब है? इस वक्त तो यही एम्बिग्विटी है। यूज्ड कार्स वेयर गो एल्सवेयर टू बी चीटेड, कम हियर फर्स्ट। ओ भाई, और कहीं जाके धोखा खाने की बजाय पहले इधर ही आ जाए, हम ही जो बैठे हैं धोखा देने के लिए। क्या इसका ये मतलब है? या इसका मतलब कुछ और है? इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं वो ये है, जनाब आप कहीं और जाएंगे तो धोखा खाएंगे, यू विल बी चीटेड। आप हमारे पास आए जनाब, हमें आजमाएं, हम आपको धोखा नहीं देते। ये कुछ और। अब ये टू लाइनर्स हैं, लाइक ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है जो रियल लाइफ स्टोरी से बाहर आई है। When two trains approach each other at a crossing, both shall come to a full stop and neither shall start up again until the other has gone. फिर से पढ़ें इसको। ये किसी यूएसए अमेरिका की किसी स्टेट कैंसस के लेजिस्लेचर यानी उनकी जो रियासती कानून है उसमें 1890s में ये कानून लिख दिया गया था। अगर दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं किसी एक क्रॉसिंग पे, दैट मीन्स कि अब उन्हें, तो चूंकि वो ट्रेन्स हैं तो अब वो ये तो नहीं कर सकते कि एक ट्रेन लेफ्ट हो जाए और दूसरी अपनी लेफ्ट पे हो जाए, या एक ट्रेन अपनी राइट पे हो जाए और दूसरी अपनी राइट पे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें। सिचुएशन ये है कि वहां पे एक ही ट्रैक है और उसी पे, उस ट्रैक पे ही दोनों तरफ से ट्रेन आ रही हैं। तो कानून ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो दोनों ट्रेन को फुल स्टॉप कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। एंड नीदर शेल स्टार्ट अप अगेन अंटिल द अदर हैज गॉन। और दोनों ट्रेन्स को चाहिए कि वो अपने इंजन को बंद ही रखें उस वक्त तक जब तक के जो मुकाबिल वाली ट्रेन है वो ना गुजर जाए। अब आप खुद सोचें, जब दोनों ट्रेन्स को ये हुक्म दे दिया गया कि जी फुल स्टॉप, रुक जाओ, और ये हुक्म दिया गया कि जी पहले दूसरी जो सामने वाली ट्रेन है, ये नहीं बताया गया कि वो ट्रेन कौन सी है, वो अप की तरफ जाने वाली है डाउन की तरफ। अब दोनों ट्रेन्स के जो ड्राइवर हैं वो तो इसको पढ़ के अपनी ट्रेन्स को बंद कर देंगे, वो तो क्यामत तक नहीं मूव होंगे। जो एम्बिग्विटी इस कानून में, इस टेक्स्ट में लिखी है, उसको किसी तरह से रिमूव करना है। ये भी मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हमारी जब मीट होगी तो उसमें आपसे पूछूंगा मैं कि इस सेंटेंस को कैसे ठीक किया जाए ताकि इसमें एम्बिग्विटी ना हो। अब ये उर्दू में भी एम्बिग्विटीज होती हैं। ये तो बहुत ही एक मशहूर सा जुमला है, उठो मत बैठो। उठो मत बैठो। अब इसमें एम्बिग्विटी है कि क्या करने को कहा जा रहा है, क्या उठने को कहा जा रहा है या बैठे रहने को कहा जा रहा है। अब अगर आप इसको इस तरह पढ़ें, उठो मत बैठो, लिखने वाले ने तो लिख दिया उठो मत बैठो, लेकिन पढ़ने वाला अगर इसको इस तरह पढ़ता है कि जी उठो, बैठना नहीं है, उठो मत बैठो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे कि नहीं जी ये जो उठो है ये अकेला नहीं है, ये मत के साथ है। उठो मत बैठो, यानी ये तो उलट हो गया। जनाब उठना नहीं है, बस बैठे रहो। अब इसका मतलब है कि दो किस्म के लोग कंफ्यूजन में चले गए। एक वो जो बैठे हुए थे, उन्होंने ये जुमला सुना उठो मत बैठो, और एक वो जो वहां पे बैठे हुए नहीं थे, खड़े थे, वो कंफ्यूजन में चले गए। किसको क्या कहा जा रहा है? बैठने वाले को उठने से मना किया जा रहा है या बैठने वाले को उठने पे मजबूर किया जा रहा है? फिगर इट आउट।
कैसे इसको दुरुस्त करें कि इसमें एम्बिग्विटी ना हो। या तो आप कहें कि जी उठो, उसके बाद एक कॉमा, मत बैठो, या फिर आप कह दें उठो बैठो मत। अब वो एम्बिग्विटी नहीं रही, ये नहीं पता चल गया, जो बैठा है उसको पता चल गया कि जी अब मुझे उठना है, बैठने से मना कर दिया गया। या फिर आप कह दें जी उठो मत कॉमा बैठो, ये जनाब आप बैठे हैं तो प्लीज बैठे ही रहें, उठने की जरूरत नहीं। So you might need to be adding a comma somewhere ताकि सेंटेंस का एक प्रॉपर ब्रेक पॉइंट आए और आगे का जो मफहूम है वो क्लियर हो। बाय वन गेट वन, क्या इसका ये मतलब है कि एक खरीदो और वही आपको मिलेगी, या आप खरीदेंगे एक और साथ में एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगी? वो फिगर आउट करें। अक्सर जगह पे ये लिखा होता है तमाम किताबें और स्टेशनरी का सामान बाजार से बारियात खरीदें। इसका मतलब है जी हमारे से ना खरीदें, हम नहीं रियायत करते। तमाम किताबें और स्टेशनरी का सामान बाजार से, यानी हमसे नहीं, बाजार की किसी और दुकान से बारियात खरीदें। क्या इसका यह मतलब है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारी जुबान का ही लफ्ज है, जुमले हैं, तो हम ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। इसका मतलब है कि जनाब दुकानदार ने ये इसलिए लिख के लगाया हुआ है कि लोग उसकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि वो बाजार से ज्यादा रियायत करके सामान सेल कर रहा है। लेकिन मेरे जैसे किसी नए उर्दू सीखने वाले के लिए एम्बिग्विटी हो सकती है इसमें। अब चंद एक जल्दी जल्दी से और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड वुमेन लेफ्ट द रूम, द ओल्ड मैन एंड वुमेन लेफ्ट द रूम। तो क्या इस जुमले का मतलब ये है कि बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें कमरे से बाहर चली गई? द ओल्ड मैन एंड वुमेन लेफ्ट द रूम, क्या इसका ये मतलब है कि तमाम बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें कमरे से बाहर चली गई? या फिर क्या इसका ये मतलब है दी ओल्ड मैन एंड विमेन, एंड विमेन, विमेन के साथ नहीं लिखा हुआ ओल्ड, लेफ्ट द रूम, इट मींस जो बूढ़े लोग थे और जो खवातीन थी कोई भी किसी भी एज की, वो कमरे से बाहर चली गई। वेरी ट्रिकी, अभी भी एम्बिग्विटी है जब तक कि आप प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स या वर्ड्स या कॉन्सोनेंट्स ऐड नहीं कर देते या कुछ और इस तरह से ऐड नहीं कर देते। The old men and old women left the room, अगर आप इस तरह लिख देते तो ज्यादा क्लियर हो जाता। या फिर आप यूं कहते the women and the old men left the room, अब क्लैरिटी है। the women, सारी खवातीन आ गई इसमें, और साथ में आ गया and the old men, यानी बूढ़े आदमी, क्लैरिटी आ गई। लेकिन जिस हालत में इस वक्त लिखा हुआ है उस हालत में ये एम्बिग्विटीज कर रहा है, इनकंसिस्टेंसीज की वजह से। they hit the man with a cane, they hit the man with a cane, उन्होंने एक आदमी को छड़ी से मारा। They hit the man with a cane, उन्होंने एक आदमी को, the man with a cane, cane का मतलब छड़ी। क्या इसका ये मतलब है कि उन लोगों ने एक आदमी को कई लोगों ने छड़ी से मारा? या फिर क्या इसका ये मतलब है जिस तरह पिक्चर में आपको नजर आ रहा है they hit the man with a cane, क्या इसका ये मतलब है कि उन्होंने उस शख्स को हिट किया, मारा, जिसके पास एक छड़ी थी, छड़ी के सहारे वो चल रहा था? एम्बिग्विटी है ना इसमें। यू हैव टू क्लियर इट आउट, किस तरह से इस सेंटेंस में क्या ऐड किया जाए या क्या रिमूव किया जाए कि ये सेंटेंस कोई एक तरफ की सेंस बना सके। मसलन ये कहा जा सके कि उन्होंने एक छड़ी की मदद से एक आदमी को मारा। इस हालत में तो हम नहीं समझ पाएंगे दे हिट द मैन विद द केन, इसमें तो बार बार इसी तरफ तवज्जो जा रही है कि जी दे हिट, और बाद में विद द केन, टारगेट क्या है? एक मैन। तो किस तरह से कौन सा टारगेट आपने वाजे करना है, उस हिसाब से आपको इस सेंटेंस में पंक्चुएशंस शायद ऐड करनी पड़े या कोई एक आध वर्ड खुद से ऐड करना पड़े। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्लो चिल्ड्रन प्लेइंग हियर, स्लो चिल्ड्रन प्लेइंग हियर,
यानी जिस आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ पर स्लो चिल्ड्रन, आमतौर पे उनको कहा जाता है जो ज़हनी तौर पे थोड़े से पसमानदा हैं या ज़हनी हल्के से माजूर हैं, आप उन्हें कह रहे हैं जी स्लो चिल्ड्रन, लेकिन खेलने का हक तो है ना उनको। तो जनाब स्लो चिल्ड्रन प्लेइंग हेयर का क्या ये मतलब है कि जी यहाँ पर स्लो वाले बच्चे, स्लो जहन वाले या जिस्म वाले बच्चे खेल रहे हैं, क्या इसका ये मतलब है? लेकिन आप बार बार जब इस जुमले को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली इट मीन्स स्लो, रुक जाओ, आहिस्ता हो जाओ। क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। ये चिल्ड्रन के साथ नहीं है स्लो, ये आपको कहा जा रहा है स्लो। स्लो चलो, आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो जरा स्लो हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग हियर। तो आप इस जुमले को आप इस तरह बेहतर बना सकते हैं, एम्बिग्विटीज इसमें से निकाल सकते हैं कि अगर आप स्लो के बाद कॉमा लगा दें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इस स्लो के बाद आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें, लाइक दिस वन, स्लो। यानी कि यहाँ पे स्लो हो जाए क्योंकि चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर। आई थिंक कि काफी आपको एग्जांपल्स मिल गई हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके पढ़ने के लिए भी मैं छोड़ देता हूँ। ऑल्ट्रेशन ऑफ वट एवर। अब इसका मतलब क्या ये है कि जी इन लोगों की जिनका जिक्र किया गया उनकी ऑल्ट्रेशन या उनकी ड्रेसेस की। और कुछ और भी मुझे ये पिक्चर्स मिली थी जो कि एम्बिग्विटीज, ये लाइक ये जो साइन बोर्ड है इस पे बहुत बड़ी एम्बिग्विटी स्पेलिंग की वजह से। हालांकि स्पेलिंग सारे वर्ड्स के सही हैं, लेकिन द प्रॉपर वर्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड। यहाँ पे ब्राइड नहीं कहना था जनाब, यहाँ पे तो ब्रिज कहना था। ब्रिज वर्क इन प्रोग्रेस, पुल पर काम हो रहा है जी, जरा स्लो चलें। वो कुछ और ही, ब्राइड का लफ्ज लिख के तो कुछ और ही उसको बना दिया। तो आई बिलीव कि आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि एम्बिग्विटीज क्या होती हैं। आपको ये भी सोचना है कि क्या आप भी कभी इस किस्म की एम्बिग्विटीज अपने काम में तो नहीं पैदा करते रहे। यानी आप जो भी लिखते हैं या बोलते हैं, आप भी इस किस्म की एम्बिग्विटीज तो नहीं कोई पैदा कर देते। आई थिंक के होती हैं, क्योंकि मैं इस किस्म की एम्बिग्विटीज को और इनकंसिस्टेंसीज को मैं भी और कई टीचर भी स्टूडेंट्स के पेपर्स में लिखा हुआ देखते हैं। और ये भी होता है कि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं किसी स्टूडेंट से, तो उसकी गुफ्तगू में चाहे वो उर्दू बोल रहा हो चाहे इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हो, उसमें कोई ना कोई चीज लैकिंग होती है जो किसी न किसी किस्म की इनकंसिस्टेंसीज या एम्बिग्विटीज का कॉज बन जाती है। आप खुद सोचें कि जब पेपर में एम्बिगुअस सेंटेंसेस आंसर्स के तौर पे लिखे जाएंगे, तो पढ़ने वाले उन्हें पढ़ के क्या मीनिंग ले रहे होंगे, करेक्ट मीनिंग या इनकरेक्ट मीनिंग। ज्यादा चांसेस तो इनकरेक्ट मीनिंग के हैं, जिसका मतलब है कि पढ़ने वाला तो यही सोच रहा है कि जी ये जो आंसर लिखा हुआ है इस बंदे को पता ही नहीं है इसका आंसर, उसने तो गलत आंसर लिखा है। और गलत आंसर का मतलब है दिस मच ऑफ अ क्रॉस एंड अ जीरो मार्क्स। और एक ही पेपर में लगातार एम्बिग्विटीज ही एम्बिग्विटीज नजर आए, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा एक नॉन एम्बिगुअस मार्क्स की शक्ल में, बड़े ऑब्वियस किस्म के मार्क्स की शक्ल में आपके सामने, लाइक जीरो। एम्बिग्विटीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। चले मैं शायद एक्सेप्ट करूं किसी वजह से, लेकिन आप जब फील्ड में जाएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है कि आप एम्बिगुअस टॉक करें या एम्बिगुअस रिपोर्ट्स लिखना शुरू कर दें। अब इन एम्बिग्विटीज से हमने किस तरह से बचना है? कोई तरीका होना चाहिए। वो ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर में वीडियो 2 आपके सामने अपलोड होगी, तो उसमें उसकी डिटेल्स होंगी। लेकिन होगा ये, मैं आपको उसका एक अट्रैक्शन दिखा दूं, जिस तरह होता है ना अगली किस्त में क्या होगा जी, ताकि अगली किस्त आप देखने के लिए आए। तो उसी तरह से आई गिव यू
इसका सोल्यूशन हमारे पास किस तरीके से है। इसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज के जरिए, बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मेथडोलॉजी और उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वही काफी होगा। जो मेथडोलॉजी है उसका नाम है स्मार्ट, एक एक्रोनिम है, SMART। और ये SMART जो एक्रोनिम है उसमें हर लेटर SMART इसका कोई ना कोई एक नेम होता है। और जो सबसे पहला नेम है SMART में, जो पहला S है, इट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आप यूं समझ लें कि वो बीमारी जो एम्बिग्विटी के वायरस से फैलती है, उसका हल, उसका इलाज स्मार्ट के S यानी स्पेसिफिक से किया जा सकता है। अगर आप अपने सेंटेंसेस को, जो कि आप बोलते हैं या आप कहीं पे सेंटेंसेस लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अगर आप उनको एम्बिगुअस नहीं बनाना चाह रहे तो मेक देम स्पेसिफिक, वो स्मार्ट हो जाएंगी। और नतीजा ये है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला एम्बिगुअस नहीं होगा, उसके सामने अनक्लियर नहीं होगा, बल्कि क्लियर सेंटेंसेस होंगे, और वो यकीनी तौर पे आपको लेमन के तौर पे नहीं, प्रोफेशनल के तौर पे एक्सेप्ट करेगा। ये ध्यान में रखें, एम्बिग्विटीज का मतलब है लेमैन, क्योंकि उसे पता ही नहीं है मैंने क्या लिखना है, क्या बोलना है। और प्रोफेशनल को पता है कि जी मुझे क्या लिखना है, क्या बोलना है। ही इज टू बी स्पेसिफिक। तो एम्बिग्विटीज और वेगनेस का ऑपोजिट है स्पेसिफिक। इसी पे हमने अगली वीडियो में डिस्कशन करनी है। So I want you people to watch this much of a video. If you don't understand it, you can repeat, replay it. And then before you come to the next video, video 2, you'll be very much conversant in the words that I have spoken. You'll be very much able to get rid of ambiguities, and then you'll be ready to work on specific. But that will be in the next video. Until then, hopefully you've seen all the video. I've also uploaded the lecture slides in the PDF form. आप उनको भी पढ़ें, और इस वीडियो को भी, जैसे आप इस वीडियो को पढ़ते जाएं, साथ में स्लाइड्स को भी, जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते जाएं, स्लाइड्स को भी आप पढ़ते जाएं, तो आपके सामने ज्यादा मीनिंग क्लियर होता जाएगा। So hopefully, inshallah, we'll be meeting for the next video, video 2, for the same discussion. Until then, it's Allah Hafiz from me. Take care of yourself.